Hello everyone. In the last lecture we discussed about error detection and correction. So we saw that when a sender was trying to send some data to the receiver, the bits got changed in the transmission medium. So we can say that our data got changed or there is an error which was encountered. So we used some methods for solving these issues. First was parity checking and the second was checksum error detecting method. So now we discuss about the third method of error detection and correction. The third method named is two dimension parity check. Okay, so what was the disadvantage of one bit parity checking? In part one bit checking, we can only check or we can only see the error in only one bit. So what आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारे पास कोई भी डेटा है उसमें अगर एक ही बिट का जो एरर है वो इनकाउंटर कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं. इट कैन चेक वन बिट ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ डेटा बिट्स. इट कैन हैंडल और इंडिकेट ओनली ओड नंबर ऑफ एरर्स. ओके, अगर हमारे पास क्या है कि इफ़ आई एम सेइंग कि उसमें हम वन बिट पैरिटी चेकिंग में क्या कर रहे थे कि इफ़ आई हैव दिस सॉर्ट ऑफ डेटा. ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे क्या है ओड नंबर ऑफ वंस है. तो हम इसको इवन नंबर ऑफ वंस बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं एक वन ऐड कर देते थे. ठीक है, इफ़ आई से मेरा डेटा कुछ वन बिट का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हुआ है बट उसकी जो पैरिटी बिट उसके साथ अटैच थी दैट वाज वन. तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि हमारी एक बिट जो है गोट इन्फेक्ट होगी. बट अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और यहाँ पे जो पैरिटी बिट लगी है वन, यहाँ पे क्या हो रहा था कि अभी क्या है ओड नंबर वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर एक वन पैरिटी बिट लगा हुआ है तो इससे हमें क्या पता लग रहा था कि जो हमारा एरर जो इनकाउंटर हुआ था वो फाइंड आउट नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे क्या था एक से ज़्यादा बिट जो है इन्फेक्टेड है. ठीक है, सो दैट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ वन बिट पैरिटी चेकिंग. सो वी केम अक्रॉस द सेकेंड मेथड फॉर एरर डिटेक्शन एंड correction, that was two dimension parity check. So here we are pursuing towards our topic two dimensional parity checking. So when a large amount of data is to be transmitted, 2D parity checks can be employed. That means कि जब हम ज़्यादा एनोमरस अमाउंट ऑफ डेटा जब हम ट्राई करते हैं सेंडर रिसीवर को सेंड करने के लिए, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, here data words are arranged one above another and is organized in the form of a 2D binary matrix. So see, sender is trying to send some data to receiver, so he is trying to send some data in the form of data words. So these data words, when we are trying to solve it in two dimensional parity check, so the data will be arranged in a two dimension binary order. Okay, for each row and each column of the matrix parity check is calculated. We are going to check the parity for each and every row and for each and every column. Here message consists of n character with 8 per bits will now become n plus 1 characters with 9 bits per character. Like see, if I have 8 bits, so after evaluating and after the parity it will become 8 plus 1, that is 9 bits per character, and then it was transmitted to the receiver. The whole metric is sent to the receiver. At the receiver, the sum of the bits in the block of data is added again, and if the calculated sum is different then that has transmitted, then an error is indicated. So it can detect up to 3 errors. Okay, in the single bit error we were only trying to check one bit error. In the two dimensional parity check we can detect errors up to 3 bits. Okay, so like see, we will check all these points and all these points will become clear after we start discussing about our example. So these all points will start making some sense to you. So like see, I have some original data. These are 4 data words which I am trying to send to the receiver. So what this data is, first is 11001111, then 101101, then 01110001, then 010101. So
This is the data which I am trying to send to the receiver. So how we are actually going to evaluate this by using our two-dimensional parity check. So here it is. Like see, I have this data. This is the data which I have shown to you like the previous slide. So this is the first word 11001111. This is the second word 10111101. 011101 is our third word. 010101 is our fourth data word. So we are going to check parity on the basis of row and on the basis of column. As I was saying that the whole data will be shown in the form of a matrix. Like see, this is actually forming a matrix. This is our two-dimensional matrix of our data. So like see, I'm always trying to make it in even parity. What is even parity? Like see, if I had odd number of 1, then I'll write 1 along with it. And if there are even number of ones, then I am going to write 0 along with it in the parity. So what I'm trying to say, like see, if I have 1 0 0 as a data, so here I have even number of 1, odd number of 1. So if I add parity 1 to it, it will become even number of ones. If I have 0 1 1 as a data, it already has even number of ones to make it to make it in even and to let it be in the even mark. So what I can add in the parity, I can add 0 here. So here I am trying to make all these parities in the even number of ones. Like see, I'll count. I'll firstly I'm going to traverse all the rows of data words and then column wise. Okay, so I'm checking this data. Okay, 11001111. How many number of ones are there? 1 2 3 4 5. I have odd number of ones, so I am adding 1 to make it as even number of parity. So I am adding 1, so there are now even number of ones. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6. I have 6 number of ones, that means even. So now I am going towards this data. Okay, so this is 101101. How many ones are there? 1 2 3 4 5. There are odd number of ones, so to make it as even number of ones, I am going to add 1 here. Okay, so how many ones are there now? 1 2 3 4 5 6. Now I have 6 number of ones along with me. Okay, now I'm going towards the third one. 011101. I have 1 2 3 and 4 even number of ones. So to remain to put it as even number of ones, I have to add 0 so that it can remain in positive of or in the even number of ones. So now I'm going towards this data word. So this has 01010001, 1 2 3 odd number of ones, so I'm adding 1 here to mark it as even number of parity. Okay, so these all are the even number of these all are the row parities. Okay, so now I'll go towards the column parity. Like these are the columns, okay. So 1 1 0 0 1 2 even number of ones, so I'm marking it as 0. 1 2 3 odd, this is 1 we make as even. 1 1 2 already even, so I'm marking it here as 0. Then 1 1 1 odd number of ones, this will make it as even number of 1. 1 1 already even, so 0. 1 odd, this will make it as even. 1 1 1 1, this will make it as this is already an even, so this will make it as even. Okay, so
like see 1 2 3, this is odd number. So when I'm trying to write it as 1, it will make our data either by row parity or by the column parity. I will get 1 here. So this is the final matrix which sender will make for its data, so for the parities. Okay, so when the sender is trying to send these data to the receiver, how he will send it? He will send it along with the parity. So now if I say it is 7-bit data, like see 1 2 3 4 5 6 7 7-bit data. Now what I was trying to say in the previous section, like see मैसेज कंसिस्ट ऑफ n करेक्टर्स विद 8 बिट्स पर करेक्टर. दैट मीन्स अगर हमारे पास किसी डेटा में 8 बिट्स हैं, किसी मैसेज में 8 बिट्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरिटी बिट ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, n+1. दैट मीन्स 9 करेक्टर्स बन जाएंगे. ठीक है. नाउ आई हैव 7 करेक्टर्स हेयर, 1 2 3 4 5 6 7. बाय एडिंग दिस इट विल मेक एज n+1. okay, so like see 1 1 0 0 1 1 1, and this one is this parity. Okay, again for the second data word 1 0 1 1 1 0 1 1. okay, this one, this 0 1 1 1 0 0 1 up to this, and this 0 is here. 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1. Then this got completed. Now even I'll write this parity. Okay, so 0 1 0 1 0 1 0 1, this is my fourth data word which will be added in my data, so that we can check our parity when the sender is going to send it to the receiver. Okay, so the simply what I have tried to say that what we discussed, like see there will be a two-dimensional parity check. Yes, there was a two-dimensional parity check, the row parities and the column parities. Here data words are organized one above another and organized in a form of 2D binary matrix. Yes, it was. For each row and each column of the matrix parity is calculated. We have already calculated it. Okay, so message consists of n characters with 8 bits per character will now become n+1 characters. Okay, we have already made that. The whole metric is then sent to the receiver. Yes, we are trying to send that complete matrix to the receiver. Okay, so this is the complete data word which will be sent to the receiver. Okay, now see if there is 1-bit error, like see we had data 1 1 0 0 1 1 1, and the data which receiver got was 1 0 0 0 1 1 1. So this bit got infected in the transmission time. So but I have parity as 1 here. Okay, so 1 2 3 4, there are a positive number of ones, or I mean to say there are even number of ones, but I have 1 here, that is making it as there were odd number of ones. Okay, so also I can check through this section. This was 1 0 1 1 1 0 0 1 1. So according to this there are already even number of ones, but this one makes it as odd one. So I got that this bit got infected during the transmission. This type of error is known as 1-bit error. Okay, so like see now there is 2-bit error. Okay, so this is 1 0 0 0 0 1 1. Okay, so this bit was already infected. Now I'm saying this bit is also infected. Okay, so this is even number of ones. Okay, so this even number of this odd number of there is odd number of ones, and this is 1. This is making it as even number of parity. So according to this row parity we are taking it as our data is not infected, but when we are going towards the column parity we are actually encountering that there is odd number of 1. Okay, because 1 2 3 it is making it as odd number of ones, but
here we encountered even number of 1, so there should be a 0, but what we are getting here is 1. So by column parity we get to know about that this bit is infected. Same as in this section we will find this out. Then we can check for 3-bit errors, but when we are trying to read it for the 4-bit error, so we'll see that the data was not correctly corrected. So this two-dimensional parity check will help us in finding the errors up to 3 bits. So what we discussed about that, we discussed two-dimensional parity check. We solved this example in which we checked for row parities and the column parities. The data will along with the parities was sent to the receiver. Then the receiver will check that data according to the parity bits which was joined along with the data. So this was the parity here, this is the parity here, this is the parity, this is the parity, and this whole is a parity. Okay, these four are making it as the row parity, this is a column parity along with it. Okay, so we have successfully get to know about that the two-dimensional parity. Now we have the fourth method, that is cyclic redundancy check for our error detection and correction. What this cyclic redundancy check is, this is based on binary division. Okay, binary division of data bits being sent by a predetermined divisor agreed upon by the communication system. What this communication system is, what I am trying to say is, we are actually using these methods कि जब एक सेंडर जो है वो रिसीवर को कुछ डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, इन बिटवीन कुछ रास्ते में क्या हो जाता है, कुछ जो डेटा ट्रांसमिशन मीडिया है उसमें कोई नॉइस आ जाती है, या कोई भी थेफ्ट हो जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर एंड हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि पूरी की पूरी बिट्स जो है, जो पूरा का पूरा जो डेटा जो सेंडर ट्राई कर रहा था रिसीवर को सेंड करने की, तो वो क्या आ रहा था कि कंप्लीट डेटा उसको नहीं मिल पा रहा था. ठीक है, उसमें कुछ एरर्स थे. ठीक है, वी ऑलवेज वांट अ डेटा टू बी एग्जैक्टली एज मैच टू दी ओरिजिनल डेटा. ठीक है, हम हमेशा चाहते हैं जो हमारे पास डेटा जो रिसीवर के पास आया है, रिसीवर हमेशा चाहेगा कि जो सेंडर उसको सेंड कर रहा है डेटा, उसको एज इट इज़ वैसा ही ओरिजिनल डेटा उसको मिलना चाहिए. ठीक है, तो बट हम क्या देख रहे थे कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा एरर में जो है जो एरर एनकाउंटर, जो डेटा में जो हमारा एरर ना इनकाउंटर हो रहा है. ठीक है, एरर कितने तरह के हो सकते हैं, या तो सिंगल बिट एरर हो सकते हैं या बर्स्ट एरर्स हो सकते हैं. सिंगल बिट एरर्स मीन्स कि एक ही बिट को जो पूरे के पूरे डेटा में है वो इन्फेक्ट हो जाती है. बस्ट एरर में क्या हो जाता है कि एक से ज़्यादा बिट जब हमारी इन्फेक्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बस्ट एरर. ठीक है, फिर हमने कुछ टेक्निक्स यूज़ करी थी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. ठीक है, एरर डिटेक्ट क्या कर रहा है कि उसमें एक एरर जो है वो फाइंड आउट कर रहा है, और करेक्शन क्या कर रहा है, उस जो एरर्स को रेक्टिफाई करके और उसको वैसा का वैसा डेटा बना देता है जो सेंडर ने उसको सेंड किया था. ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड्स. सो अभी हमने 3 मेथड्स कर लिए थे. सबसे पहले हमने इवन पैरिटी चेक मेथड किया था, सिंगल पैरिटी चेक मेथड किया था पैरिटी चेकिंग का. ठीक है, उसमें भी हमने इवन पैरिटी और ओड पैरिटी देखा था. उसमें हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं हमारे डेटा में तो हम पैरिटी में क्या लिख देंगे, 0. और अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ वंस है तो हम पैरिटी में लिख देंगे 1. ठीक है, फिर हमने चेक किया था, अभी हमने 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग किया था. ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग में हमने डेटा वर्ड्स लिए, उसको हमने रो वाइज और कॉलम वाइज पैरिटी चेकिंग करी. ठीक है, और अलॉन्ग विद द पैरिटी हमने जो डेटा वर्ड है वो अपने पूरे के पूरे ट्रांसमिट कर दिए सेंडर रिसीवर को. ठीक है, तो रिसीवर बाय यूजिंग दोज पैरिटी चेक कर लेगा कि उसके पास जो डेटा आया वो करेक्ट है या नहीं है. अगर नहीं होगा तो वो बाय यूजिंग दोज पैरिटीज़ वो उसको अपने डेटा को जो है वो करेक्ट कर सकता है. ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट चेकसम. ठीक है, तो चेकसम से भी हमें यही पता लग रहा था कि अगर हमारा पूरा का पूरा जो भी हमने प्रोसीजर करा था, पैरिटी एक साथ में हमने ऐड करते करते जो लास्ट में हमारे पास डेटा पड़ा था अलॉन्ग विद चेकसम, हम क्या कर देते हैं, रिसीवर को सेंड कर देते हैं. रिसीवर उसको यूज़ करके हमारे पास जो फाइनल
डेटा आता है लाइक लास्ट फाइनल सम जो आता है उसमें क्या करता है वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अगर सबकी सब सारी की सारी जो वैल्यू है वो ज़ीरो बन जाती हैं देन वी कैन से दैट हमारा जो डेटा है वो एकदम करेक्ट आया है, उसमें कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अभी ये जो फोर्थ मेथड है दैट इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इट इज़ समहाउ सिमिलर टू दी चेकसम, बट इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा मेथड जो यूज़ होगा वो बाइनरी डिवीजन मेथड यूज़ होगा। ठीक है, सो क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक डिवाइजर, अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो देयर शुड बी अ डिवाइजर ना, सो दैट हमारा जो मतलब हमारे पास जो डेटा है हम उसको उस पर डिवीजन जो मेथड है वो इम्प्लाई कर सकें। ठीक है, सो ये डिवीजर कैसे आएगा, ये डिवीजर एक पॉलिनोमियल हमारे पास कंडीशन दी होती है। ठीक है, जो एग्रीड अपॉन होती है, रिसीवर और सेंडर के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है जिससे वो एक पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल डिवीजर है वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो CRC मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिनोमियल कोड चेकसम। ओके, लाइक सी I have data. What this data is? I have data 1100. Okay, I have data 1100 and there is a generator x cube plus x plus 1. ठीक है, this divisor is agreed upon by the communication system between sender and receiver. ठीक है, both know this डिवीजर। ओके, सेंडर के पास भी ये जनरेटर है और जो रिसीवर है उसके पास भी सेम जनरेटर होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं बाइनरी डिवीजन की। ठीक है, बाइनरी डिवीजन के लिए जो हम डिवीजर है, अभी ये जो चीज़ होती है इसको हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, सो इस पॉलिनोमियल से हम अपना डिवीजर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो डिवीजर प्रेजेंट हो, मतलब जो वैल्यू प्रेजेंट हो उसके साथ हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और जो नहीं होगा उसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक सी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब है प्रेजेंट है इस जनरेटर में, तो मतलब 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब के बाद क्या आता है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स क्यूब उसके बाद क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है नहीं है तो हम क्या लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या आता है एक्स है, येस देयर इज एक्स 1 इंटू एक्स प्लस फिर उसके बाद क्या आ जाता है 1 इंटू 1, सो दिस विल बी इनकाउंटेड एज 1 0 1 1। सो वी गॉट आर डिवीजर हेयर बाय यूजिंग दिस जनरेटर। ओके, तो अभी क्या करेगा, सेंडर के पास ये डेटा था 1100। ठीक है, दिस डेटा 1100। अब ये हमने जो डिवाइजर है वो हमने क्रिएट कर लिया इस बाय यूजिंग दिस जनरेटर। ठीक है, तो अभी इस डिवाइजर से हम आगे ये फर्दर कंपटीशन करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम इस डिवीजन में कितने हैं वैल्यूज़, 4 है। n की वैल्यू क्या है 4 है यहाँ पे। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 1 2 3 4 n माइनस 1 कर देंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 1 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है, 3 वैल्यूज ऑफ जीरोस हम क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस डिवीज़र के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हुआ 1 1 0 0 1 0 1 1। इस पे हम एक्सोर का ऑपरेशन चलाते हैं। एक्सोर का क्या होगा, अगर 0 एक्सोर 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, 1 एक्सोर 1 0, 1 एक्सोर 1 विल बी 0, 1 एक्सोर 0 विल बी इक्वल टू 1, 0 एक्सोर 1 विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ 1 1 का हमने एक्सोर किया। ठीक है, तो 1 1 का एक्सोर 0, 1 0 का एक्सोर 1, 0 1 का एक्सोर 1, 0 1 का एक्सोर 1, और ये 3 की 3 बिट्स हमारी एज इट इज़ आ गई। ठीक है, फिर से हम अपने डिवीजर को उसके नीचे लिख देते हैं जहाँ से हमारा 1 एनकाउंटर होता है, जहाँ से हमारा 1 स्टार्ट होता है। तो ये 0 है, 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो इसके बिल्कुल नीचे हम अपना डिवाइजर लिख देंगे 1 0 1 1। ठीक है, 1 1 विल मेक इट एज 0, 1 0 विल मेक इट एज 1। ओके, 1 1 1 will make it as 0, this 0
एक्सोर 1 विल मेक इट एज 1, देन हमारे पास ये 2 0 रह जाएंगी, वो हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम वैसे डिवीज़र को नीचे लिखेंगे जहाँ पे हमारा 1 एनकाउंटर हो जाएगा। एनकाउंटर कहाँ हो रहा है, वहाँ यहाँ पे, फिर 1 0 1 1, ठीक है। 1 1 विल मेक इट एज 0, दिस 0 0 विल मेक इट एज 0, दिस 1 1 विल मेक इट एज 0, 0 एक्सोर 1 1 0 एज इट इज़ 0, ठीक है। इसके नीचे अगर हम डिवाइज़र अब लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आगे फर्दर बिट्स नहीं है, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो हमने अभी कितनी बिट्स यहाँ पे चेंज करी थी, कितनी बिट्स पे 0 लगाया था, 3 बिट्स पे। तो हम ये लास्ट वाली 3 बिट्स जो हमारी आफ्टर ये ऑपरेशन करने के बाद जो आई हैं, इसकी जो 3 बिट्स हैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देंगे इस 3 0 से, मतलब 1 1 0 0 तो आ ही जाएगा। उसके साथ हम क्या कर देंगे, ये हमारा, इसको हम क्या बोल देते हैं, अपना CRC कोड बोल देते हैं। CRC मीन्स साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कोड, ठीक है। ये 0 1 0 जो होगा अब हमारे डेटा के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ इट विल बिकम एज 1 1 0 0 0 1 0, ओके। तो अभी जो सेंडर सेंड करेगा डेटा, वो इस तरह से सेंड करेगा 1 1 0 0 0 1 0 मीन्स डेटा प्लस CRC कोड, ठीक है। ये अब रिसीवर के पास चला जाएगा। अब रिसीवर इसको कैसे डिकोड करेगा, इसने इनकोड कर दिया, एनकोडिंग होगी यहाँ पे डेटा की, अब यहाँ पे डिकोडिंग होगी, ठीक है। डिकोडिंग कैसे होगी, अब सेंटर के पास, सेंटर ने सेंड किया डेटा ऐसा, तो रिसीवर को एज इट इज़ ऐसे डेटा मिल गया 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब डिवाइज़र क्या था, सेम उसके पास भी जनरेटर था x³ + x + 1 वाला, ये वाला, ठीक है। सेम यही वाला डिवीज़र था, उसके जनरेटर था। इस जनरेटर से उसने भी एक डिवाइज़र अपना क्रिएट कर लिया, तो उसके पास भी सेम ऐसे डिवाइज़र बन गया, ठीक है। फिर वैसे 1 0 1 1 किया, ठीक है। 1 1 विल मेक इट एज 0, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फिर से डिवाइज़र आ गया, जहाँ कहाँ से डिवाइज़र लिखेंगे, जहाँ से हमारा फर्स्ट 1 एनकाउंटर होगा, यहाँ से एनकाउंटर हो रहा है 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 बाई यूजिंग दीज ऑपरेशंस, ओके। नाउ वैसे 1 0 जो होगा हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर वैसे डिवीज़र फर्स्ट 1 जहाँ पे एनकाउंटर होगा 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हम एंड पे पहुँच गए। जैसे हमने चेकसम में बोला था कि अगर हमारे रिसीवर के पास जो एंड जो डेटा आएगा, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, हमारे पास जो आ रहा था डेटा, उसको अगर हमने कॉम्प्लीमेंट किया था, तो अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ अगर 0 आ गई, तो हमने क्या बोला था कि वहाँ पे जो डेटा हमारे पास आया वो करेक्ट डेटा है, उसमें कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। अगर सारी की सारी 0 एनकाउंटर्ड हो जाती हैं तो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक से हमें क्या पता लग रहा है, जो भी हमारा डेटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो विथ 0 एरर हम रिसीवर के पास जो डेटा है वो पहुंच गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अगर सपोज़ यहाँ पे कहीं पे उसको 1 मिल जाता, ठीक है, तो इससे उसको क्या पता लग जाता, जो एरर, जो हमारे पास जो डेटा आया है वो हमारा क्या आया है, इन्फेक्टेड डेटा आया है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द 4 मेथड्स ऑफ checking error detection and error correction, okay. So this is the simple cyclic redundancy check which is actually using binary division, okay. Thank you so much. Here we are going to end our lecture.